अभी मैं महिलाओं से 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। आप सब आओ इधर। I will explain to them that in Telugu. When Congress government अभी पावर में आएगी, कांग्रेस की सरकार सोनिया गांधी जी ने कहा था हम तेलंगाना बनाएंगे। उन्होंने तेलंगाना बनाकर दिया। अभी उन्होंने कहा है सोनिया गांधी जी ने, अभी उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को, औरतों को 2500 रुपया महीना देंगे, बस में फ्री सर्विस होगी और गैस का सिलेंडर 500 का होगा। हमारा राजस्थान का गवर्नमेंट है 500 का गैस सिलेंडर, कर्नाटका में फ्री बस सेवा 2500 रुपए हर अकाउंट में। अभी बताइए। We are from the Congress. Sonia Gandhi ji said she will make Telangana. She made Telangana. She kept her promise. She was here yesterday and she said when the Congress government comes to power, we will give you 6 guarantees. पहला गारंटी क्या है? पहला गारंटी है कि हम महिला को कैमरा కొంచెం మీరు about 500 houses. I will show you next time. Viewers, पूरा कानू कानू 500 का गैस सिलेंडर, खाना पकाने का गैस सिलेंडर 500 रुपया और बस का सेवा फ्री टोटल। ऐसा सोनिया जी ने बोला तेलंगाना बनाएगी, उन्होंने बनाया। अभी उन्होंने ये गारंटी दिया है और हमारा कर्नाटक की सरकार में हम ये दे रहे हैं, तेलंगाना में सरकार बनाएंगे, देंगे। अभी हिमाचल प्रदेश कर्नाटक एलेक्शन फस्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल अमल इंतकु राजशेखर और ये 200 यूनिट बिजली का मुफ्त, 200 यूनिट फ्री और किसान के लिए 15,000 रुपया महीना और मजदूर के लिए 12,000 रुपया साल का, ऐसा करके है। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो बुढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, पेंशन 4,000 रुपया महीना और 10 लाख का आपको आरोग्य स्कीम, हेल्थ स्कीम मिलेगा। अभी 2,000 है, 4,000 करेंगे। old age 60 years 4,000 rupees. Water Mahila, single Mahila, single lady, all 4,000. 7 categories. 8 places కూడా 4,000 రూపాయలు. గోరెగాలు వాపుట కదా. But main thing for women, 500 rupees gas cylinder.
महिला के लिए 2500 रुपया महीना, 500 का गैस सिलेंडर, खाना पकाने का गैस सिलेंडर 500 रुपया, 500 रुपये और बस का सेवा फ्री टोटल। ऐसा सोनिया जी ने बोला तेलंगाना बनाएंगी, उन्होंने बनाया, अभी उन्होंने ये गारंटी दिया है। और हमारा कर्नाटक की सरकार में हम ये दे रहे हैं, तेलंगाना में सरकार बनाएंगे देंगे। अभी और ये 200 यूनिट बिजली का मुफ्त, 200 यूनिट्स फ्री, और खेत किसान के लिए 15,000 रुपया महीना, और मजदूर के लिए 12,000 रुपये साल का, ऐसा करके। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो बुढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, पेंशन पे 4,000 रुपया महीना, और 10 लाख का आपको आरोग्य स्कीम, हेल्थ स्कीम। రేవంత్ రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేసినటువంటి 6 సంక్షేమ పథకాలు మన జనగామ నియోజకవర్గంలో ఇవ్వడానికి ఆల్ ఇండియా సోషల్ మీడియా చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సుప్రియా శ్రీమతి గారు మన దగ్గరికి వచ్చారు. వారు మీకు విషయాలు కూడా చెప్తారు. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ హామీలు ఇచ్చిందో అన్ని హామీలను అమలు చేసినారు. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు తప్ప మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఏ ప్రభుత్వం కూడా సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వలేదు. ఇస్తా చెప్పి కూడా అమలు చేయలేదు. కానీ ఇందిరాగాంధీ గారి హయాంలో, అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారి హయాంలో, అదేవిధంగా సోనియా గాంధీ గారి హయాంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీద ప్రజలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, అదేవిధంగా ఓల్డేజ్ వాళ్లకు, ఇల్లు లేని వాళ్లకు, అన్ని తదితర వాళ్లకు హామీలు ఇచ్చి అమలు చేసింది. మిగతా పార్టీలకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ హామీ ఇచ్చినా, ఏ వాగ్దానం చేసినా తూచా తప్పకుండా ఎలక్షన్లో ప్రభుత్వం రాగానే అమలు చేసింది. ఉదాహరణకు మీరు 24 అవర్స్ కరెంటు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో 24 గంటల కరెంటు, ఉచిత కరెంటు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నాటి సంతకం పెట్టింది. అదేవిధంగా రైతు రుణమాఫీ ఈ విధంగా ప్రకటించి ఇది గవర్నమెంట్కి రాగానే అమలు చేసింది. ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు అనుభవిస్తున్న సమాజంలో అంటే అవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన సంక్షేమ పథకాలే, వేరే ఎవరు పెట్టే కాదు. ఇందిరాబాయిలు 1947 నుంచి 1956లో మనం అయినాం. 1956 నుంచి కూడా ఈరోజు ఎక్కడ ఎస్సీ అవేర్నెస్ పోయినా కానీ ఇందిరాబాయి ఇండ్లే ఉన్నాయి తప్ప వేరే ఏం లేవు. ఇప్పుడు కూడా రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు. గతంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి చేసిన వాగ్దానాలు ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలేదు. ఉద్యోగ సమయంలో కానీ, అదేవిధంగా ఎన్నికల సమయంలో 2014-2018లో చేసిన వాగ్దానం ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలేదు. శాంపుల్కి ఒకటి అమలు చేసి మొత్తం అమలు చేసినట్టుగా చెప్పుకొని మోసం చేస్తూ ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అదేవిధంగా బీజేపీ పార్టీ కూడా దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు గుణపాఠం చెప్పాలని చెప్పి ఈరోజు ప్రజలు భావిస్తున్నారు. అందుకనే నిన్న ఈ రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంకి వస్తే 6 సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తామని చెప్పి నిన్న భారీ సభలో, పెద్ద భారీ బహిరంగ సభలో చెప్పడం జరిగింది సోనియా గాంధీ గారు, అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు. వాటిని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తాం. అందుకే మేడం వారు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారు కూడా ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతారు. మాట్లాడిన తర్వాత కొంతమంది శాంపుల్గా మేము కార్డు కూడా ఇస్తాం. పెద్ద భారీ బహిరంగ సభలో చెప్పడం జరిగింది సోనియా గాంధీ గారు.
అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు వాటిని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తాం. అందుకే మేడం వారు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారు కూడా ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతారు. మాట్లాడిన తర్వాత కొంతమంది శాంపుల్గా మేము కార్డు కూడా ఇస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ వాగ్దానం చేసిందో అది రేపు అధికారం రాగానే మొదటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే అమలు చేస్తుంది. దానికి ఉదాహరణగా ఇప్పుడు ఈరోజు కర్ణాటక కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కానీ ఎన్నికల ముందు ఏ వాగ్దానాలు ఇచ్చినో అధికారులకు రాగానే ఆ వాగ్దానాలను అమలు చేసినాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా అధికారులకు రాగానే తప్పకుండా ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. రాగానే ఈ 6 సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం. దాంట్లో 6 ఒకటి మహాలక్ష్మి పథకం మహిళలకు 2,500 రూపాయలు పర్ మంత్. సో 6 పథకాలు సిక్స్ సంక్షేమ పథకాలు రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం రాగానే అమలు చేస్తుంది. సో మేడం ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా చెప్తారు. Our brothers and sisters, a big welcome to the media here. Yesterday was a historic day. The Congress Working Committee, the newly elected Congress Working Committee, मैं हिंदी में बोलूँ अंग्रेजी में बोलूँ? हिंदी में बोलूँ। कल बहुत ऐतिहासिक दिन था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी मिली। तेलंगाना में हमारी पहली मीटिंग हुई नवनिर्वाचित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। नए अध्यक्ष खड़गे जी की अध्यक्षता में श्रीमती सोनिया गांधी जी वहाँ पर रही, हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ पर रहे और तेलंगाना में इस मीटिंग के बाद एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग हुई जिसमें हर प्रदेश से CLP और PCC लीडर्स, PCC आए, अध्यक्ष आए और उसके बाद सबसे ऐतिहासिक मीटिंग। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी राजनीतिक रैलियाँ देखी हैं, बहुत सारी राजनीतिक मीटिंग देखी है, लेकिन कल जो मैंने हैदराबाद में देखा वो अद्भुत था, वो अविस्मरणीय था। इस तरह के लोग, इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी और लोग पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। यहाँ पर एक बदलाव की हवा बह रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उस हवा में हम बात करना चाहते हैं कि तेलंगाना के लोगों का क्या हो रहा है और वो बात करनी ज़रूरी है क्योंकि तेलंगाना के लोगों ने बहुत मेहनत से और बहुत संघर्ष कर अपना राज्य पाया और उस पर मैं 2-4 मिनट चर्चा जरूर करना चाहती हूँ। श्रीमती, जो PM किसान सम्मान निधि है वो सिर्फ किसानों को मिलती है, लेकिन जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, जो दूसरे खेती और किसानों के पास दूसरे किसानों की भूमि पर लेबर का काम करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। तो उनके लिए 12,000 रुपये प्रति साल हम उसकी बात कर रहे हैं। हम 500 रुपये बोनस चावल की उपज पर देंगे। तो रैतु भरोसा जो हमारी योजना है वो किसानों को समर्पित है। 15,000 रुपये किसानों के लिए, 12,000 रुपये कृषि मजदूरों के लिए और 500 रुपये बोनस चावल की धान की पैदावार पर। युवा विकासम में हम विद्या भरोसा कार्ड दे रहे हैं जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए होगी हर विद्यार्थी को, जिससे पैसे के अभाव में चलते उनकी शिक्षा पर, उनकी एजुकेशन पर कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई दिक्कत ना आए। इसलिए एक कार्ड वर्थ विद्या भरोसा कार्ड जिसकी 5 लाख वैल्यू होगी वो हर स्टूडेंट को दिया जाएगा। और तेलंगाना के हर मंडल में हम तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल खोलेंगे जिससे गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, गरीब आदमी का बच्चा भी अंग्रेजी की शिक्षा और जिस तरह से दुनिया पढ़ा रही है आजकल लोगों को वो शिक्षा प्राप्त कर सके। ये हमने छत्तीसगढ़ में किया है, ये हमने राजस्थान में किया है और अब हम तेलंगाना में भी इसको करेंगे। हर बार जब गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, वृद्ध के लिए काम होता है तो सबको ये चिंता होती है और होनी भी चाहिए, बजट कहाँ से आएगा। अडानी के लिए बजट पे चिंता नहीं होती, अंबानी के लिए बजट पे चिंता नहीं होती है, KCR कहाँ से स्कीम अपने घरों की कर रहे हैं, बजट की चिंता नहीं होती है। बजट की चिंता हमेशा गरीब आदमी की भलाई होगी तब होगी। राज्य सरकार का एक बजट है, अगर उस बजट को ही ढंग से लगा दिया जाए ये सारी चीजें हो सकती है। कांग्रेस का एक नीति है, कांग्रेस की जो नीति निर्माण होता है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता है, कांग्रेस की जो गारंटी होती है वो हम ऐसे ही खड़े होकर नहीं बोलते थे हम ये करेंगे। कांग्रेस की ये सारी चीजें हमारी मैनिफेस्टो कमेटी सेंट्रल तक जाती है जहां पर चिदम्बरम जी जैसे लोग हैं जो अर्थशास्त्र की नॉलेज रखते हैं, वो इसका अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही
ये चीजें हम अनाउंस कर सकते हैं। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया था हिमाचल में, सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम पास करी गई। तो कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है और इसके बारे में तेलंगाना से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमने आपसे वादा किया था, हमने आपको भरोसा दिलाया था कि जैसे ही वक्त ठीक होगा, समय आएगा, हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे और सोनिया जी ने उस वादे को पूरा करने का काम किया है। और आज हम आपसे फिर कुछ वादे कर रहे हैं और वादा करना जरूरी है क्योंकि तेलंगाना में एक भ्रष्ट सरकार है, वो भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा के इशारे पर काम करती है। ऐसा कोई बिल नहीं होता पार्लियामेंट में जहां पर भाजपा को नंबरों की और सांसदों की जरूरत हो और वहां पर ये बीआरएस के लोग ना खड़े हो जाएं। तो ये असल में बीआरएस का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, भाजपा रिश्तेदार समिति है। आपके हक का पैसा इनके परिवार ने मारा, करोड़ों लाखों का स्कैम हुआ। तेलंगाना नया राज्य बना था और ये आशा थी कि यहाँ पर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, गरीबों पर, खेतिहर मजदूरों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के विकास पर दिया गया। तो मेरा अपना मानना यह है कि तेलंगाना में हवा बदल रही है, तेलंगाना के समीकरण बदल रहे हैं, तेलंगाना के लोग उस व्यक्ति को नहीं चाहते जो भाजपा के इशारे पर नाचता रहे और भाजपा के इशारे पर काम करे। बीजेपी की बी टीम को तेलंगाना इस बार हराएगा और कांग्रेस को मौका देगा कि हमको कर सके जो सपना हमने तेलंगाना के लिए देखा था। और मुझे लगता है हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो ऐसी कोई चीज करे जिससे कि उसका घर बन जाए। हर व्यक्ति का, आप अगर किसी छोटे से बच्चे से भी बात करें तो कहता है मैं बड़ा होकर घर बनाऊंगा। किसी युवा से बात करें वो कहता है नौकरी लग जाएगी, मैं घर बनाऊंगा। एक बुजुर्ग का जो सपना होता है कि रिटायरमेंट की सेविंग से मैं घर बनाऊंगा। तो इंदिरा अम्मा इंदलू जो हमारी योजना है उसमें हम घर के लिए 5 लाख रुपए हर उस व्यक्ति को देंगे जिसके पास घर बनाने के लिए नहीं है और जिसने तेलंगाना राज्य बनने की लड़ाई लड़ी है, जो तेलंगाना राज्य के क्रांतिवीर हैं, उन लोगों को हम 250 स्क्वायर यार्ड जमीन भी देंगे। ये बड़ी योजना है, ये विश्व में कहीं नहीं है, ये किसी और राज्य में नहीं है। और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना उन लोगों के लिए जिनके सिर पर आज घर की और सुरक्षा की वो छत नहीं है। उसके बाद हमारी गृह ज्योति योजना है, ये बहुत जरूरी योजना है। ये कर्नाटका में भी चल रही है, ये राजस्थान में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है। 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त होगी। 200 यूनिट तक आपको बिजली जो है उस पर कोई भी पैसा नहीं देना होगा, वो पूरी तरह से मुफ्त होगी और ये एक बड़ी योजना है। हमने महिलाओं की बात करी, हमने किसानों की बात करी, हमने युवाओं की बात करी, हमने परिवारों की बात करी, लेकिन हमारे समाज में जब तक वृद्ध लोगों की, जब तक बुजुर्गों की बात नहीं होगी तब तक कोई बात पूरी नहीं होती। और इसीलिए जो चौथा योजना हमारी है उसमें हम 4000 रुपए वृद्धों के खाते में डालेंगे और यही नहीं 10 लाख रुपए की राजीव आरोग्य स्कीम भी देंगे। राजस्थान में हम 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना चला रहे हैं जिससे कि लोगों को इलाज में सहायता मिले। चौथा के अंतर्गत हम 10 लाख रुपए की राजीव आरोग्य, इसीलिए जो चौथा योजना हमारी है उसमें हम 4000 रुपए वृद्धों के खाते में डालेंगे और यही नहीं 10 लाख रुपए की राजीव आरोग्य स्कीम भी देंगे। राजस्थान में हम 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना चला रहे हैं जिससे कि लोगों को इलाज में सहायता मिले। चौथा के अंतर्गत हम 10 लाख रुपए की राजीव आरोग्य स्कीम चलाएंगे और वृद्ध परिवारों को, वृद्ध लोगों को 4000 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे और मुझे लगता है सवाल पूछना जायज भी है, मीडिया को भी ये सवाल पूछना चाहिए और मीडिया जरूर पूछेंगे। हर बार जब गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, वृद्ध के लिए काम होता है तो सबको ये चिंता होती है और होनी भी चाहिए, बजट कहां से आएगा। अडानी के लिए बजट पे चिंता नहीं होती, अंबानी के लिए बजट पे चिंता नहीं होती है, केसीआर कहां से स्कीम अपने घरों की कर रहे हैं, बजट की चिंता नहीं होती है। बजट की चिंता हमेशा गरीब आदमी की भलाई होगी तब होगी। राज्य सरकार का एक बजट है,
अगर उस बजट को ही ढंग से लगा दिया जाए ये सारी चीजें हो सकती है। कांग्रेस का एक नीति है, कांग्रेस की जो नीति निर्माण होता है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता है, कांग्रेस की जो गारंटी होती है, वो हम ऐसे ही खड़े होकर नहीं बोल देते हम ये करेंगे। कांग्रेस की ये सारी चीजें हमारी मैनिफेस्टो कमेटी सेंट्रल तक जाती है, जहां पर चिदम्बरम जी जैसे लोग हैं जो अर्थशास्त्र की नॉलेज रखते हैं, वो इसका अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही ये चीजें हम अनाउंस कर सकते हैं। हमने सारे कैलकुलेशन किए हुए हैं, ये बिल्कुल फीजिबल है, वायबल है और ये हो सकता है। उपस्थित थी और ऐतिहासिक था क्योंकि सोनिया जी ने वादा किया था कि वो तेलंगाना राज्य देंगी और हर व्यक्ति से लड़के, हर परिस्थिति से जूझकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया। और कल राहुल जी ने भी कहा जब वो कुछ कह देती हैं तो फिर उसको करके दिखाती हैं। तेलंगाना बनाने का उन्होंने वादा किया था और उन्होंने तेलंगाना बनाकर अपना वो वादा पूरा किया। और उसके बाद कल लाखों लोगों के सामने उन्होंने कांग्रेस की कुछ गारंटियां रखी आने वाले चुनाव में, और उन गारंटियों के बारे में पहले बात करूंगी और वो गारंटियां जरूरी क्यों हैं इसके बारे में बात करूंगी। हमारी पहली गारंटी जो है वो महालक्ष्मी योजना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनके हाथ में पैसा आना जरूरी है। 2500 रुपए, 2500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसी स्कीम हम कर्नाटक में आपके बगल में चला रहे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, सिलेंडर 1100 से ऊपर का मिल रहा है, ये मोदी जी की कृपा है। सिलेंडर 500 में दिया जाएगा और ये हम अपने राजस्थान में करके दिखा रहे हैं। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी और हमने पहला निर्णय लिया कि हम बसों में महिलाओं की यात्रा को मुफ्त करेंगे। महिलाओं को पैसा नहीं देना होगा, उससे उनके हाथ में 1500-2000 रुपए और आएंगे और उनका आवागमन ईजी रहेगा। तो महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीना, फ्री बस सेवा, 500 रुपए का गैस सिलेंडर। मुझे लगता है महिलाओं के सशक्तिकरण में ये बड़ी बात होगी। फिर राइतु भरोसा, ये जरूरी है क्योंकि तेलंगाना के ही नहीं इस देश के किसान परेशान हैं और खास तौर से तेलंगाना के किसानों में एक शोक है, दिक्कत है और उनके कर्जे नहीं माफ होते हैं। तो हमारा अपना मानना है कि 15,000 रुपए हर साल, 1000 रुपए से ज्यादा, करीब 1500 रुपए, 15,000 रुपए पूरे साल में हम किसानों की खाते में डालेंगे। किसान के खाते में भी जो कि भूमि का मालिक है और जो टेनेंट फार्मिंग भी करता है, जो किराए पर भी फार्मिंग करता है या जिसको अधिया कहते हैं उस पर भी करता है, उस पर भी हम 15,000 रुपए डालेंगे। 12,000 रुपए हम फार्म लेबर पे डालेंगे। और ये कांग्रेस मेंबर्स प्रेजेंट हियर, our brothers and sisters, a big welcome to the media here. Yesterday was a historic day. The Congress Working Committee, the newly elected Congress Working Committee, मैं हिंदी में बोलूँ अंग्रेजी में बोलूँ? हिंदी में बोलूँ। कल बहुत ऐतिहासिक दिन था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी मिली। तेलंगाना में हमारी पहली मीटिंग हुई नवनिर्वाचित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, नए अध्यक्ष खरगे जी की अध्यक्षता में। श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां पर रही, हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां पर रहे और तेलंगाना में इस मीटिंग के बाद एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें हर प्रदेश से सीएलपी और पीसीसी लीडर्स, पीसीसी आए, अध्यक्ष आए। और उसके बाद सबसे ऐतिहासिक मीटिंग, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी राजनीतिक रैलियां देखी हैं, बहुत सारी राजनीतिक मीटिंग देखी है, लेकिन कल जो मैंने हैदराबाद में देखा वो अद्भुत था, वो अविस्मरणीय था। इस तरह के लोग, इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी और लोग पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। यहाँ पर एक बदलाव की हवा बह रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उस हवा में हम बात करना चाहते हैं कि तेलंगाना के लोगों का क्या हो रहा है, और वो बात करनी जरूरी है क्योंकि तेलंगाना के लोगों ने बहुत मेहनत से और बहुत संघर्ष कर कर अपना राज्य पाया और उस पर मैं 2-4 मिनट चर्चा जरूर करना चाहती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी जी कल वहां पे उपस्थित थी और ऐतिहासिक था क्योंकि सोनिया जी ने वादा किया था कि वो तेलंगाना राज्य देंगी और हर व्यक्ति से लड़के, हर परिस्थिति से जूझकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया। और कल राहुल जी ने भी कहा
जब वो कुछ कह देती हैं तो फिर उसको करके दिखाती हैं। जुमला नहीं है। कांग्रेस ने वादा किया था कर्नाटका में 5 बड़ी स्कीम का, 5 स्कीम हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्वीकृत हुई। कांग्रेस ने वादा किया था राजस्थान में, राजस्थान अकेला राज्य है जहां पर 500 में सिलेंडर बिक रहा है। कांग्रेस ने वादा किया था छत्तीसगढ़ में, सरकार ने लाख रोड़े लगाए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की खरीद होती है और सबसे ज्यादा दाम पर होती है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया था हिमाचल में, सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम पास करी गई। तो कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है और इसके बारे में तेलंगाना से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमने आपसे वादा किया था, हमने आपको भरोसा दिलाया था कि जैसे ही वक्त ठीक होगा, समय आएगा, हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे और सोनिया जी ने उस वादे को पूरा करने का काम किया है। और आज हम आपसे फिर कुछ वादे कर रहे हैं और वादा करना जरूरी है क्योंकि तेलंगाना में एक भ्रष्ट सरकार है, वो भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा के इशारे पर काम करती है। ऐसा कोई बिल नहीं होता पार्लियामेंट में जहां पर भाजपा को नंबरों की और सांसदों की जरूरत हो और वहां पर ये बीआरएस के लोग न खड़े हो जाए। तो ये असल में बीआरएस का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, भाजपा रिश्तेदार समिति है। आपके हक का पैसा इनके परिवार ने मारा, करोड़ों लाखों का स्कैम हुआ। तेलंगाना नया राज्य बना था और ये आशा थी कि यहाँ पर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, गरीबों पर, खेतीहर मजदूरों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के विकास पर दिया गया। तो मेरा अपना मानना यह है कि तेलंगाना में हवा बदल रही है, तेलंगाना के समीकरण बदल रहे हैं, तेलंगाना के लोग उस व्यक्ति को नहीं चाहते जो भाजपा के इशारे पर नाचता रहे और भाजपा के इशारे पर काम करे। बीजेपी की बी टीम को तेलंगाना इस बार हराएगा और कांग्रेस को मौका देगा कि हमको कर सके जो सपना हमने तेलंगाना के लिए देखा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और मैं चाहती हूँ आपके कोई सवाल हो इसका मैं जरूर। అతి తక్కువ సమయంలో మీ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీ జేఎన్ టీవీ తెలంగాణ ఛానల్లో అతి తక్కువ ఖర్చుతో ప్రకటనలివ్వండి. అత్యధిక లాభాలను సాధించుకోండి. వ్యాపార, వాణిజ్య, పాఠశాలలు, వైద్యశాలలు, హోటళ్లు, వస్త్ర దుకాణాలు, అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు సంప్రదించండి. మా ఫోన్ నంబర్స్ 8558288081 9247896607. Hi! Subscribe to JNTV Telangana. Don't forget to like the video and to get the notification of a video, hit the bell icon.